हे गाइस, देखिए क्या टाइम हो रहा है। 1:14 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं, मतलब रात के। और अगला दिन हो ही गया है और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट लाने मम्मी जी को। उनको भी अर्जेंट आना पड़ा क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हो गई थी, तो डिटेल में आपसे कल बात करूंगी। और कल सुबह सुबह हमें जाना है नवन्या के स्कूल। नवन्या का कल स्पोर्ट्स डे है, तो वो भी है और इतना लेट ऑलरेडी हो चुका है, तो सारी चीज़ें एकदम मस्त व्यस्त है बस। तो मम्मी जी को भी ट्रैवल करके आना पड़ा और हमारे यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है मुंबई में, उनको रुकना पड़ा। वहाँ से फिर फ़्लाइट चेंज करो, ये करो वो करो, तो उनको भी बहुत परेशानी हो गई। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें उनका वीज़ा लेना पड़ा। टिकट्स वगैरह कराया हमने अर्जेंटली और आ रही हैं वो। एयरपोर्ट पे हम आ गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नवनिया के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। दोनों रेडी हो चुके हैं। दादी से भी मिल लिया दोनों ने, बात भी किया काफ़ी। बहुत खुश है दोनों। नव तुम ऐसे क्यों खड़े हो एकदम? नव क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? हैं? गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। एक्चुअली 8:30 बजे नहीं है, बजने वाले हैं 10 मिनट, 8:20 हो रहे हैं। नवनिया स्कूल के अपने टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे वो जाते हैं उस टाइम पे। उसके बाद अभी हमें जाना था 8:30 बजे से। आज स्पोर्ट्स डे है तो पेरेंट्स को भी जाना है। नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। कल मम्मी जी को घर आते थे कितना टाइम हो गया था, 2:30 तो बज गए थे ना। हाँ 2:30 बज गए थे। फिर आते हुए सोते सोते, मतलब सब सोने गए तो वही 3 बजे। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब मैं इतना सा भी नहीं सोई हूँ, ऐसी जगी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और अभी निकल रहे हैं हम लोग। धूप कितनी ज़्यादा है। मैं जितनी देर बैठी रहूँगी वहाँ पे शायद मैं ऐसे ऐसे नींद ले लूँ। चेयर पे ही बैठ के देखती हूँ। थैंक यू। Holding the flags of the country we are representing. Can we all put our hands together to cheer and encourage the future athletes of AICS? Good morning, FS. Are you ready for vote-taking ceremony? This senior official from Dubai Police, Captain Awad. He is the member and coordinator of the Positive Spirit Initiative of Dubai Police. We feel privileged to have you over, sir. I would like to thank you for accepting our invitation and gracing us with your presence. Please give him a big round of applause, everyone.
Education, our CEO, Mr. Nabil Ahir, and Director Ms. Hajra for gracing the occasion. Many thanks for coming. We are truly honored. And a hearty welcome to the parents and families that never fail to impress us with their constant support and zeal. It is because of your affection and encouragement that we see our children in high spirits even after such a tiring day. It is difficult to navigate these past few weeks because of philosophy. To encourage every... Good morning. How are you? Are you ready? With this, we declare the meet open. Because it's not just about winning, it's about participation, teamwork. We now have William and Elena continuing with the race. Allow towards the props and slowly moving towards the finishing line. Let's fill the air with cheering and tons of encouragement for these little ones, the future athletes of AICS. And here we have the students moving through the tunnel with the ball in their hand, moving through the hula hoop, trying to wear the headband, and through the hula hoop they have crossed the barrier and reached the finishing line. We now have the next set of students from FS2. From FS2A again. Parents, let the cheering never stop. Let's cheer them. Make them feel happy, encouraged. Wearing the headband, moving towards the finishing line. To win, to participate. We are all going to remember for the rest of our lives. Now we move on to our next event, which I believe gives the true essence of a sports team. Will begin.
एनुअल स्पोर्ट्स डे था और दोनों को मिले मेडल। एक्चुअली एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, सबको दिया उन्होंने मेडल। तो उनके लिए ऐसा था कि एवरी चाइल्ड इज़ अ विनर, तो बहुत अच्छा लगा, है ना। इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन। Yes. हाँ, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया सभी बच्चों को, क्योंकि उनके लिए सभी बच्चे जो हैं वो विनर हैं, जो कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी अर्ली स्टेज पे हैं, अर्ली एज के हैं, तो उनके लिए पार्टिसिपेशन जो है ना, सबके साथ मिंगल होना, पार्टिसिपेशन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बोली है फिर सेट ने कि इनको क्या पता, इतने छोटे, इनको क्या पता फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है। इनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस है सबको मेडल्स देने के बाद, वो देखो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इनको क्या पता, गेम थोड़ा ना खेल रहे थे, तो एंजॉय कर रहे थे। जैसे निया जो थी वो सर्कल वाला था, जिसमें जंप करना था, वो कूद रही थी, वाला की एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम लोग तो ये ना जब कि जीतना बेचारी कूद के एंजॉय कर रही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज दिखी कि सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। राइट। और कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, और बच्चों को तो ऐसे भी फुल एंथू के साथ अप्रिशिएट करना चाहिए लोग। अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करते तो बाकी बच्चों ने भी तो मेहनत किया था ना, मेहनत तो सबने किया था। अब वहाँ पे बच्चे उदास हो जाते, इसीलिए फिर उन्होंने सब किया। और ऐसा तो कोई गेम नहीं था ना, वहाँ पे किसी ने अच्छा तैयारी किया, किसी ने नहीं, बट वहाँ पे सब वो हो जाता है, ऐसा नहीं जज कर सकते वहाँ पे, इसलिए। एग्जैक्टली, निया ने कंपैरेटिवली अच्छा खेला। राइट। मतलब निया को ऐसे भी मेडल मिलता। हाँ, वो तो है। मम्मी जी आई हैं कल, तो ये सब लेके आई हैं घर की बनी हुई चीज़ें, ये अचार वगैरह, ये हाथ से जो बनाती हैं घर पे, वो सारी चीज़ें। आज वो मेडल नहीं खुलेगा, आज मेडल लगा के रहेंगे दिन भर। घर आने के बाद नम ने वो शेड्स लगा लिया, शूज पहन लिया, अब डांस दिखाएगा दादी को। दादी को सिखा रही है निया। देखिए ना, मम्मी जी को बैल्कनी में लेके गया, कुछ तो बता रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ें बता रहा है, पता नहीं क्या समझा रहा है। क्या बता रहे हो ना आप? वो बता रहा है उधर डे टू डे है, वो मार्केट है, वो सब बता रहा है जितना उसको मालूम है। क्या क्या बताया ना डे टू डे, क्या बताया? हाँ, बताया शॉप नीचे, और वहाँ पर भी डॉक्टर वाला वहाँ पर बताया। ओके, और उसमें बोला मार्केट में है। अच्छा, उधर है मार्केट। और डे टू डे किधर है? क्या है वो? मार्केट। अच्छा, वो कौन सा मार्केट है? अच्छा, डे टू डे। दादी को कार का मॉडल बता रहा है। हेलो दादी, गाड़ी चला रहे, वो वाला यहाँ जो है। हेलो दादी। ना, उधर मत लटको, इधर आओ। हेलो दादी। तो गाइस, रात के 8 बज रहे हैं। दिन में स्कूल से आने के बाद इतनी नींद आ रही थी, हमें इतनी नींद आ रही थी, मतलब मैं, नवनिया, निवेश, मम्मी जी सब सो गए थे, सब रात भर जगह। मम्मी जी के पास कुछ था नहीं करने को, तो वो हमारे स्कूल जाने के बाद भी थोड़ा लेट गई, बट हमारी नींद नहीं पूरी हुई थी। तो आने के बाद बहुत नींद आ रही थी, तो थोड़ा सो गए हम लोग। और जैसा कि आपने देखा, मम्मी जी आई हैं, तो क्यों आई हैं, अर्जेंटली उनको आना पड़ा। एकदम से हमने बुकिंग वगैरह किया, वीज़ा लिया, क्योंकि बहुत लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्यों आई है, बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग आपके साथ कोई भी बात इसीलिए शेयर करते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं ना जो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो वो मिस करते हैं हमारे ब्लॉग्स को। अगर ब्लॉग्स नहीं जाते हैं और कनेक्टेड है वो, तो हमारे घर में क्या सारी चीज़ें हुई नहीं हुई, तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो पर्सनल ठीक है, बहुत पर्सनल जो चीज़ें हैं वो अलग बात है, बट जो चीज़ें हैं डेली लाइफ में वो तो शेयर कर ही सकते हैं। जो सही रीज़न है उसके साथ शेयर करना पड़ता, नहीं तो फिर चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, समझ में नहीं आती।
इसीलिए जो बातें हैं मैं उस तरह से ही शेयर करूंगी। तो मम्मी ताकि कुछ उससे हाँ। अगर लेसन्स मिले ना तो आप लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे समय का और पैसे का सदुपयोग हो सके। बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। एक बात मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी एक ही वीडियो में इतना कुछ नहीं करेंगे शेयर। लाइफ का भी टफ फेज हमारा चल रहा है। हालांकि अनिमेश नहीं चाहते तो उस बारे में बात करें, थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं हुई और अभी जो बात करेंगे ये चीज़ें भी नहीं हुई थी इतना। तो अनिमेश ने बोला कि रहने देते हैं, फिर मैंने बोला ना कि नहीं, आप लोगों के ब्लेसिंग से ही हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, अच्छा होता है, सब मिल के दुआ करते हैं, सब मिल के ब्लेसिंग्स देते हैं, तो अच्छा होता है। तो बिल्कुल आप हमारी फैमिली हो तो कैसे नहीं शेयर करेंगे। हालांकि ये बात अभी तक सिर्फ घर के लोगों को ही पता है, इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मी तक को नहीं बताया क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, बट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बात अलग है। और अभी कि मम्मी जी क्यों आई हैं, तो मम्मी जी आई हैं क्योंकि प्रियंका को ले जाना है उनको। जैसा कि आपको हमने बताया था, क्यों आई यहाँ पे, उसका मन नहीं लग रहा था। हमने बहुत कोशिश किया, आपने देखा होगा मैं जहाँ जाती थी लेके जाती थी, मतलब जहाँ हम घूमने जाते थे, पार्क हो गया, मैजिक प्लैनेट हो गया। अब देखिए जहाँ लेके नहीं जा सकते थे, जैसे नवनिया के स्कूल दिन में अगर मुझे जाना हो, मुझे और अनिमेश को, या टीचर से कुछ बात करी हो, तो वहाँ पे लेके नहीं जा सकते थे, तो वो चीज़ें अलग है। बट जहाँ हमसे पॉसिबल होता था उसको लेके ही जाते थे। दिन भर अभी हमारे घर में टीवी चलता है। मैंने नवनिया का स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम किया हुआ था। अभी हमारे घर पे गाना ही चलता है, दिन भर चलता है, और मैं उसके लिए रोकती भी नहीं हूँ। हालांकि नवनिया पे इसका असर ठीक नहीं पड़ रहा, आंखों पे असर पड़ता है, गाना ज़्यादा सीख रहे हैं वो, बट ताकि प्रियंका का मन लगे, वो देखती है, तो इसलिए मैंने कुछ से मना नहीं किया कि चलो मन लग जाए, किसी तरह मन लग जाए। बट चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। हमने बहुत कोशिश किया, बट उसका मुंह बना ही रहता था। बाहर भी जाती थी, मैं भी उसको 2 दिन स्कूल लेके गई, सुबह निवेश जब सऊदी गए थे, वो मुंह बना के ही जाती थी। लोग मुझे देखते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तीसरे दिन में मैंने बोला तो फिर इंटरेस्टेड नहीं थी, उठ ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि इसके पीछे अगर मैं करूँ टाइम तो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर लाने जब जा रही थी तो वो ड्रेस ही चेंज नहीं करी थी, बोली ऐसे ही चलते हैं, तो उसको नहीं, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश किया, इतने टाइम में मैंने बहुत कोशिश किया, उसका मन लग गया। होता है शुरू में लोगों का मन नहीं लगता है, बट कोशिश तो खुद करनी पड़ती है। अगर आप कमाने आए हो बाहर तो करना पड़ता है। हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। जैसा कि मैंने पहले बोला, इटली में मेरा मन नहीं लगता था, बट 4 पैसे जमा कर सके, थोड़ा भविष्य ठीक हो जाए, इसके लिए मैंने भी तो बहुत स्ट्रगल किया, इन्होंने भी किया, अभी भी कर रहे हैं, तो करना पड़ता है। बट बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, आप सोचोगे कि अगर मैं या अनिमेश किसी की हेल्प कर देते हैं, हमने वहाँ पे इतना हेल्प किया हुआ है लोगों का, बोलना नहीं चाहिए सारी चीज़ें। इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं कंपनी में, सबका घर चल रहा है। और क्या हुआ ना, उसकी जो सिस्टर थी वो माधुरी वहाँ पे आई, उसने देखा कि हम मंदिर में जो गए थे, जो यूट्यूब मनी से मैंने जो भी चीज़ें वहाँ पे की थी, तो देखा उसने, तो वो उसको लगा कि मतलब उसने घर पे जाके अपनी बहन से शेयर किया होगा, तो इन लोगों को लगा कि अगर मैं भाभी के साथ ऐसी सारी चीज़ें बोलूँगी, थोड़ा इमोशनल है भाभी, तो अब पता नहीं क्या सोच के उसने मुझे वो सारा बोला कि वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है। मैं अनिमेश हम लोग सब बातों में आ जाते हैं, सबके सोचते हैं चलो किसी का तो भला हो जाए। हालांकि जितने पैसे हमने खर्च कर दिए वीज़ा में, लॉन्ग टर्म वीज़ा, पैसे इतने बर्बाद हुए, सैलरी तो चलो ठीक है जितने टाइम रही उसका हुआ, बाकी आना जाना, मम्मी जी का वीज़ा लगाना, मम्मी जी आना चाहिए, तो मम्मी जी का खैर अलग चीज़ है। देखिए मम्मी जी भी आई हैं तो दूसरी तरह से अभी आई हैं। अभी क्या है, अनिमेश के ऊपर इतना बड़ा वाला प्रेशर आया हुआ है, मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा। अभी अनिमेश किसी को टाइम नहीं दे सकते कि घूमने जाएँ, कुछ नहीं हो सकता है। हमें नहीं पता हमारा कल को क्या होगा, ये हमें नहीं पता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात है कि मम्मी जी अगर छुट्टी के टाइम में आती, जैसे भी रमज़ान की छुट्टी आ रही है तो आती, तो हम घूमने जाते, एंजॉय करते। मम्मी जी को भी एकदम अर्जेंटली आना पड़ा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस टाइम में उनको आना पड़ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, जितना जैसा पॉसिबल हो पाएगा, जितने दिन है कोशिश करेंगे कि बाहर जाए या जो भी चीज़ है, बट एकदम वैसा टाइम में मम्मी जी को भी आना पड़ गया। तो वही अगर वीज़ा लगता या आते घूमने तो अच्छे टाइम में आते, रमज़ान की छुट्टी के टाइम में कभी भी, तो बातें सही रहती है, ऐसे प्लान करके आते। अभी सब एकदम गड़बड़ हो गया, तो जितना खर्च हुआ हमारा उतने पैसे में हम यहाँ पे किसी को ले लेते तो मुझे लगता है साल भर तो काम हो जाता हमारा, है ना, उससे ज़्यादा ही हो जाता। 2 घंटे 3 घंटे के लिए लेते अगर पार्ट टाइम में तो हो जाता। मतलब हमारे पैसों की वैल्यू नहीं है। इन लोगों का अगर 10 रुपया खुद का खर्च होता है तो उसका बहुत वैल्यू है, दूसरे का लाखों ऐसे ही खर्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब बात अपनी जगह पे है, मन नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ हमने कोशिश की। चलो तुमको गाने देखने, दिन भर गाने देखो, जो करना है करो, अपनी मर्जी से जो मैंने खाओ, जो करना है करो, बस तुम उदास मत रहो।
सब फेल। उसको लगा कि शायद वो अपनी स्टोरी सुनाएगी, इमोशनल करेगी, तो मैं ऐसे ही हेल्प कर दूँ या कुछ भी, ऐसे ही लगा। पता नहीं, शायद उसको लगा था कि दुबई अलग है, आई मीन जाएंगे फ्लाइट पे या घूम लेंगे, बस वही लाइफ है वहाँ की और कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है ना। और दूसरा, इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे भाभी को तो शायद वो बहुत इमोशनल हो जाए या चीज़ें बिना मेहनत किए कुछ किए ऐसे ही हो जाए। मैं वो भी करने को तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार थी, बट तुम अपना बिहेवियर तो सही रखो। तुम बच्चों के साथ तो सही बिहेव करो, बच्चे नहीं तुमसे वो हो पा रहे हैं, बच्चों का केयर होता है। मतलब इतना क्या एक्सप्लेन करूं, बट आप समझ जाओ कि चीज़ें इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। सब बात अपनी जगह, तुम मुझे प्यार से बोलते कि आपका इतना पैसा खर्च हो गया, कोई बात नहीं, बट मुझे जाना है। हम तब भी राजी थे। हम कभी अपनी चीज़ों की वजह से अपना नुकसान हम सह लेते हैं, लेकिन हम दोनों में ये चीज़, हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए। मम्मी जी का पता है आपको, मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी के साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं सकती है पापा की वजह से, और मेरी सिस्टर का भी आपको पता है। तो वो चीज़ है, मम्मी जी वहाँ रहती हैं, खुले खुले में उनको रहने की आदत है, पूरा उनका अपना सब कुछ वहाँ सेटअप है। यहाँ पे अगर वो नवनिया के साथ आके रहे, हमारे साथ आके रहे, तो हमें मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस यही है कि कोई गार्जियन हमारे साथ रहे। बट वो नहीं रहती क्योंकि उनको यहाँ पे मन नहीं लगता, बंद बंद। अभी आप देख रहे हो उनको, देख रहा 5 दिन में पूरा बोर हो जाएंगे। अभी आज ही देख के उनका फेस लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा। वो तो खैर नवनिया है तो थोड़ा बाहर बाहर देख लेती है, बट उनको जैसे वहाँ खुले में रहने की आदत है, इधर उधर उधर इधर कर रहे हैं वो है। तो मम्मी जी को हम बोल सकते थे कि आप रह जाइए अब हमारे साथ। इनफैक्ट उनका गोल्डन वीज़ा भी लग सकता है ना, अभी कुछ ऐसे क्राइटेरिया तो उनका लग जाएगा, वो भी अनिमेश के पीआरओ ने बोला। बट वो नहीं रह सकती है यहाँ पे। अदरवाइज अगर वो रह जाती, सिर्फ इतना होता कि वो रहे, हमारे लिए बहुत बड़ा वो स्ट्रेंथ होता। बट हम नहीं जिद करते अपनी चीज़ों के लिए, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, अपना नुकसान सह लेते। वही चीज़ है, पैसे बर्बाद हुए अपनी जगह, पैसे इंसान आज नहीं तो कल कमा लेगा। बट अगर बोल दे कि नहीं मुझे नहीं रहना, तो अलग चीज़ है। वो दूसरे डायरेक्शन में चीज़ें करने लगी, जिसके कारण हमने डिसीजन लिया। और हमने उससे पूछा अभी फाइनली, तो उसने बोला कि नहीं रहना। उसने अपने पापा मम्मी को बोला कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो काजल इसकी सिस्टर गई है छोटे भैया के, वो ठीक से रह रही है क्योंकि वो इसकी स्टेप सिस्टर है। और माधुरी जो यहाँ पे आने के लिए बहुत परेशान थी, वो भी इसकी स्टेप सिस्टर थी। तो वो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है और इसका थोड़ा अलग है। तो वो बहुत परेशान थी आने के लिए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे उसका डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिया गया, कि उसका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है, OTP नहीं आएगा, बहुत सारी कहानियाँ बनी। आखिर मुझे उसका कुछ नहीं मिला, तो इसका उन लोगों ने मुझे आधार कार्ड दिया, तो हमने इसका पासपोर्ट बनवाया, सब बनवाया। ये आई यहाँ पे, इसने बोला मुझे जाना है। और इसने भी खुद से ही बोला, ऐसा नहीं है कि हमने बोला या कुछ, खुद से बोला कि माधुरी का नहीं बन रहा है, मुझे जाना है। माधुरी का था कि मुझे जाना है। अब मेरी माधुरी से बात नहीं हो रही क्योंकि वो मम्मी पापा के पास नहीं रहती है। काजल जो कि छोटे भैया के घर गई है पुणे, और माधुरी, ये दोनों नानी के यहाँ रहती थी। अब मेरे पास माधुरी का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। एक कांटेक्ट नंबर है, उस पर उससे बात नहीं हो रही है, वो उसके मम्मी पापा के घर का है, बाकी नाना नानी के घर को वो लोग देते नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, उससे नहीं हो रही है। अनिमेश से मैंने कहा किसी तरह बात करा दो, इन्होंने भी कोशिश किया कि वो नहीं हो पाए। इससे मैंने पूछा प्रियंका से कि कैसे बात होगा, तो बोलती है मुझे नंबर नहीं पता, मेरे को नहीं पता कैसे बात होगा। तो आई थिंक इन लोगों का आपस में इतना नहीं बात है, मतलब काजल माधुरी जो दोनों बहन है और इन लोगों का। तो इनकी एक बड़ी सिस्टर थी जिसकी डेथ हो गई, मतलब इन लोगों से भी बड़ी थी, जो स्टेप सिस्टर ही थी इसकी, प्रियंका की, मतलब माधुरी और काजल की अपनी बहन थी, वो डेथ हो गई किसी कारण से। तो ये अपने पापा को फ़ोन पे बोलती थी, मुझे वो दिखती है सपने में, वो मुझे बोलती है यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से चली जाओ। तो अब ये सारी स्टोरीज ये बना रही। तो अब बताओ, अगर कोई घर में ये सारी चीज़ें बोल रहा है, बच्चों वाला घर है, मैं अकेले रहती हूँ, अनिमेश रहते हैं, मतलब अगर कोई ऐसी स्टोरी बना रहा है कि यहाँ पे भूत आता है, भूत दिखता है, तो कैसे कोई मतलब रहे, कितना भी पैसा बर्बाद हो, हम इस स्थिति में जी सकते हैं? आप खुद सोचो। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो जब सोती भी है ना, तो इतना उसको नींद आती है, हमारे उठने के बाद वो उठती है, उसको कितना भी उठा लो, कितना भी कुछ कर लो, उसकी नींद इतनी गहरी है, वो उठती नहीं है। नवनिया के रूम में वो सोती है। जब वो शुरू में आई थी, और अभी तक मैं उसको बीच रात में भी जाके चेक करती हूँ कि मतलब ठीक से सोई हुई है कि नहीं। किसी को लेके आए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, बीच रात में जाके मैं चेक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। एकदम गहरी नींद में सोई रहती है, दिन में भी सोती है। नवनिया उठ जाते, सब उठ जाते हैं, बट उसकी नींद नहीं खुलती है, कितना भी उठा लीजिए, सुबह में उसकी नींद नहीं खुलती है, कितना भी अलार्म बज जाए, कुछ हो जाए। तो इतनी गहरी नींद में तो सोती है। तब वो अपने पापा को, जो कि सीधे हैं, जिनको इतना समझ में नहीं आता, उनको कहानी सुना रही है कि यहाँ पे मुझे दीदी दिखाई देती है, ये होता है, वो होता है। अब आप बताओ, इस स्थिति में कोई कैसे किसी को घर में रख सकता है? अनिमेश चले जाते हैं ट्रिप पे, मैं अकेले रहती हूँ, ये सारी बातें मेरे मन में आएगी तो मेरा तो दिमाग ही फिर अलग हो जाएगा उस जोन में। मुझे पता है झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह की स्टोरी नहीं बनानी चाहिए थी। यहाँ से जाने के लिए मन नहीं लग रहा, बहुत लोग यहाँ थे, मन नहीं लगता शुरू में। मेरा भी नहीं लग रहा था जब मैं 2019 में आई थी, बट अभी धीरे धीरे लगा लिया मैंने मन।
तो ऐसे नहीं होता। तो यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि किसी का अच्छा सोचा तो क्या करें, अभी बहुत नुकसान हो गया। दूसरी बात इस बीच में जो मैंने आपको बोला सऊदी गए थे नहीं, तो कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो वो बताएंगे, तो वो सब भी साथ में चल रहा था। उस कारण से मैं इसको छोड़ने नहीं जा सकती थी। इसने बोला मुझे जाना है। अब ये फ़ोन पे कहानी सुना रही है पापा को कि भूत है, ये है, वो है। आप उस स्थिति में कैसे इसको रखें? अब मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अनिमेश की तबीयत इस बीच में ठीक नहीं, आपने देखा उस दिन चेस्ट पेन हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है। मैं नवनी अनिमेश को यहाँ पे छोड़ के 2 दिन या 4 दिन, कम से कम 4 दिन के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इसको लेके जाऊँ फिर आऊँ, नहीं जा सकती थी मैं। इसीलिए मम्मी जी से बात हुई, हमने बोला कि आपका टिकट वीज़ा करा रहे हैं, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने, मैं बोल रही थी कि नहीं, इसका मुझे देख के लग रहा है कि नहीं रह पाएगी। तो भी सबने बोला नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब वही चीज़ हो गई। तो आई, वो लेके भी जाएंगे, क्या कर सकते हैं अभी। बट बहुत बुरा मतलब एक्सपीरियंस रहा, क्या बोलूँ मैं अभी, क्या बोलूँ, क्या ही कर सकते हैं अभी। बट गाइज मैंने बहुत कोशिश किया कि मन लग जाए। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। एक्सपीरियंस यही है कि कितने भी लोगों का मदद करो, बट लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसका फुल रिटर्न देना चाहिए। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी आदमी किसी पे 100 रुपया खर्च कर रहा है ना, तो उसको 200 रुपया काम करके देना चाहिए, और तभी तरक्की संभव है, नहीं तो नहीं है। और अगर कोई आदमी 100 रुपया खर्च कर रहा है और उससे आप 500 रुपया और खर्च करवा रहे हो, करवाए जा रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे चक्करों में क्या होता है ना कि आगे जाके सबका मनोबल टूटता जाता है, और फिर हेल्प करने के लिए किसी का भी लोग 10 बार सोचता है। बट सही मायने में पूछिए तो कितने लोग आज डिपेंडेंट हैं हम लोगों पे, तो वो तो बता ही नहीं सकता। एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, पता नहीं कितने लोग हैं भी एसोसिएटेड। तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ तो इशू रहता ही है। लेकिन आप तो जानते हैं कि अभी यूएई ये सब जगह पे अगर कोई आता भी है तो उसका पासपोर्ट रख लेते हैं, 2-2 साल के लिए देते नहीं है, जाने नहीं देते हैं। बहुत लोगों को तो मैंने यहाँ पे देखा है, रोड पे वो कुछ सामान बेचते रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। आपको कॉन्ट्रैक्ट किया है, पैसा लगाया है कोई किसी के ऊपर इतना, तो वही चीज़ है ना। बट हम वो नहीं करते हैं, क्या करें। कितने लोग तो मुझे बोलते हैं, मैं वॉक करते रहूंगा कि सर मेरा पासपोर्ट रख लिए हैं, ये है वो है, मेडिकल का पैसा नहीं है, कुछ तो चीज़ें बोल के पैसा मांगते रहते हैं। तो वही हमने बोला कि चलो यार एटलीस्ट किसी और की बच्ची है, यहाँ आ गई है, इसको डिफिकल्टी है, नहीं मन लग रहा है, तो छोड़ो, भेज ही देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह किया, हमें कुछ नहीं। तुम जाओ यार, तुम कम से कम ऐसे यार घर में इतनी निगेटिविटी फैला के मत जाओ। इतना बुरा तब से हो रहा है, मतलब इतनी निगेटिविटी थी। कुछ लोगों को मैंने उस टाइम में भी शेयर किया था निगेटिविटी, बट लोगों ने कुछ और ले लिया, बर्तन, ये वो चीज़ तो कोई मायने नहीं रखती। अभी भी मेरे पास इतना सामान, आज हमें अगर यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़ा तो आपको क्या लगता है मैं सब लेके जाऊंगी? सब ऐसे ही बर्बाद होगा, सब ऐसे ही क्रॉकरीज वगैरह ऐसे ही जाएंगे। जैसे मैंने इटली में सब छोड़ा था, भले प्यार से खरीदते हैं, बट बहुत कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो सब तो कोई मायने नहीं रखता है। ये दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है। अब आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अगर कोई आपको अपने फ़ायदे के लिए झूठा कहानी अपने माँ बाप को सुना रहा है, और उसके पापा बोल रहे हैं कि उसको ये दिखती है, बाप रे, मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है ना, मैं उसको देखती हूँ दिन भर, उसको सिर्फ गाना चला दूँ, ये चला दूँ, वो सब में मन है, रात में भी इतने अच्छे से सोती है। नहीं मन था दूसरी बात है, बट इस तरह की चीज़ें दीदी दिखती है जो नहीं है दुनिया में, बाप रे, वो बोलती है जाओ जाओ, चलो चलो चलो, यहाँ से मेरे साथ चलो। क्या बोलूँ मैं। छोड़िए, वीडियो इस प्रकार बहुत ही लंबी हो जाएगी और हमारी वार्तालाप जो है वो चलते रहेगी। समस्याएं हर घर में होती है, उसको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके फिर पॉजिटिव चीज़ों को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए, वही करनी है। समस्याएं बहुत है, इश्यूज बहुत चल रहे हैं आजकल, सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आगे भी बढ़ना है। पॉजिटिविटी जो घर में होनी चाहिए, और घर में अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो घर से बाहर भी नहीं होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके आसपास अगर नेगेटिव लोग हैं, सब कुछ उस तरह का हो रहा है, माहौल घर का नहीं ठीक है, तो पूरे लाइफ पे उसका असर होने लगता है, और हुआ भी है ये चीज़। सबसे अच्छी बात ये है कि मम्मी आ गई है यहाँ पे, और ये एक कह सकते हैं ना, जो संयुक्त परिवार की जो कह सकते हैं मजबूती है। सही मायने में देखिए तो
कभी मम्मी यहाँ आ जाती हैं, कभी हम लोग वहाँ चले जाते हैं, और कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तो बड़े भैया इधर आ जाते हैं मुझे लेने के लिए। मेरे भतीजे का यानी कि जो छोटे वाले भैया हैं उनके बेटे का बर्थडे होता है तो हम लोग पुणे चले जाते हैं। सो ये जो है ना सही मायने में बोलिए तो ये एक श्वेता की अच्छी बात है कि ये मायके और ससुराल दोनों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। कोई भी कभी भी कहीं भी ऐसा मिलजुल के आते जाते रहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, उसी में ऊपर नीचे आगे पीछे करके सब आते रहते हैं, सब जाते रहते हैं, सब मिलते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा या बहन नहीं आ सकते अभी, जब टाइम आएगा तो वो भी ज़रूर आएंगे। पापा का तो मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, बट मैं अभी भी यही उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर एक बार आएंगे, देखते हैं। पापा जी को तो ठीक होने में टाइम लगेगा, तो मम्मी को तो उनको ध्यान देना है। उनकी जो एक छोटी वाली बहन है बिन्नी जी, उनकी भी तबीयत खराब ही है। उनको चिकन पॉक्स हो गया था, उसके बाद से बहुत तबीयत वीक है अभी। आपको पता है उसका, मम्मी जी की भी तबीयत खराब है। तो सही मायने बोलिए तो हम लोगों ने भी एक डिसीजन इसलिए लिया कि जो इनका बिजनेस है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, या फिर सवारी मिथिला की जो राइड ऐप चल रही है, या फिर हम तो है ना जो एक बिहार की होम सर्विस प्लेटफॉर्म है, ये सब का ऑफिस जो है वहाँ पे डालने का एक मतलब ही यही था कि सब परिवार जो है कनेक्टेड रहे। क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस में स्टाफ लोग रहते हैं, कहीं कुछ हुआ कुछ भी है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, तो मम्मी जी भी आके खुल के बोल सकती घर के बाहर ही है ना। हाँ बिल्कुल, घर पे ही है ना, वो घर के बाहर ही है, तो कभी भी बोल सकते हैं। कुछ भी छोटा मोटा काम हो, भले वो नहीं करती है, मम्मी जी बहुत ही खुददार हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एंड हैट्स ऑफ टू हर नेचर। लेकिन कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। सेम अगर आप मेरी मम्मी को भी देखिए तो मम्मी को कहीं जाना नहीं है, बिकॉज उनको लगाव है ना, इतने दिन काम किया दरभंगा में, खुला खुला माहौल चाहिए। तो हम लोगों ने वो घर जो है वहाँ पे जो रहन सहन है, घर है, कैंपस है, सब अपग्रेड किया कि वो बाहर का स्टैंडर्ड जो है मैच कर सके, क्योंकि मम्मी भी वो लाइफ डिजर्व करती है, समझे। और हम किसी को भी दिक्कत नहीं हो परिवार में, चाहे हमारे बड़े भैया जाए, छोटे भैया जाए, उनकी फैमिली जाए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आप देखिए एक सर्कल बना हुआ है, ससुराल का, घर का, दुबई का, सब कनेक्टेड हैं। लोग इतने काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। किसी को कोई भी परेशानी होती है कोई दूसरे तीसरे से मदद मांग लेता है, जो टीम में ही है ऐसे ही है। तो मिला जुला के एक जो है हेल्दी कल्चर हमने क्रिएट किया हुआ है, और वो इसीलिए कि किसी को कोई भी समस्या नहीं हो, और अगर हो भी तो जल्द से जल्द सॉल्व हो। तो इन सब चीज़ों में एक पॉजिटिविटी दिखती है, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और बातें बहुत हो गई है, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, तो बस गाइस अब वीडियो खत्म करेंगे आज की। यही कारण था जो मैंने आपको बोला था कि कुछ परेशानी चली आपके साथ शेयर करेंगे, तो एक तो शेयर कर दिया, एक आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। तो दो चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो मम्मी जी अभी आई हैं, अब आई हैं तो तुरंत तो नहीं जाएंगी ऑब्वियसली, 15 दिन रह के ही जाएंगे तो प्रियंका को साथ में लेके जाएंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।